Before I start, my name is Adnan Amin, and I'm a Microsoft MVP for almost 6 years now. I got my MVP in 2015, and still it continues. And I'm also a Microsoft certified trainer. And last week I have able to renew my 14th my MCT award. So it's been 14 years being a Microsoft certified trainer, and I'm working on SharePoint site since 2009. I have a developer background. I started my career in 2005, and so working on it. And you can reach out to me on my Twitter, on my blog, and on the Facebook page for MS Tech Talk or SharePoint Pakistan group. We have a good community for the SharePoint in Pakistan, and with over, I think, 500 to 600 users. And those all are I personally know all of most of them, and who are actively working on SharePoint for past couple of years now. So if I start now on the topic which we will covering today are related to the Microsoft information architecture for SharePoint. But before that, we will once again discover that what we will be covering in this series of sessions. Then the review on the developer tenant, which we created last week. And after that, we will discuss about hub sites, and then understand the role of a person in the information architecture, and the level of navigations which are required for the SharePoint sites, and then what is the SharePoint site, pages, and all those things we'll be discussing later on the session. So here is that last week, on what we will be covering in this series. On the week one, we have reviewed that what is Microsoft 365 tenant, and what is in there for the dev tenant, how you can get free access to your dev tenant, and how to get subscription 3 months subscription out of the free for the dev tenant. And after that, this week we will be discussing about the information architecture design. Acha, I think we have most of the people from Pakistan for the event, so I'm jumping to Urdu also. अच्छा, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी साइट के लिए. जस्ट लाइक आई एम जस्ट सो अच्छा, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज यानी की है किसी भी यानी कि शेपमेंट फॉर्म की, शेपमेंट साइट की. ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह आप अपना घर बनाते हैं तो उसके लिए एक आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड होता है. तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है. जस्ट लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिजाइन रिक्वायर्ड होता है शेपमेंट साइट्स का भी. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे शेपमेंट साइट सिक्योरिटी मैनेजमेंट के किस तरीके से शेपमेंट साइट्स की सिक्योरिटी वगैरह मैनेज करनी है, आइटम लेवल सिक्योरिटी, कंटेंट के आपको पता है कि जो डेटा इज नाउ द यानी कि जो हाईएस्ट वो मोस्ट एक्सपेंसिव यानी कि ये चीज है, इस वक्त ये वैल्यूएबल चीज है. बिफोर इट यानी कि ऑयल इससे पहले था, अब डेटा सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि पर्सपेक्टिव है. और कंटेंट को किस तरह सिक्योर करना है, किस चीज से कंटेंट की ऑथराइजेशन करनी है, वो किस तरह से करनी है शेयरपॉइंट के अंदर. आई विल बी शेयरिंग दैट ऑन ओवर नेक्स्ट वीक सेशन. अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस प्रोसेसेस के ऊपर कि किस तरीके से जो कंटेंट अवेलेबल है उसके ऊपर हम अपने कोई बिजनेस प्रोसेसेस वगैरह ऐड करें, which will be discussing on the sessions SharePoint List and Power Automate. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, SharePoint List और पावर ऑटोमेट, इन तीनों की इंटीग्रेशन का वॉक थ्रू करेंगे. किस तरीके से आप नो कोड आप एक बिजनेस प्रोसेस क्रिएट करते हैं. After that, we will be discussing on the SharePoint development roadmap. Because being a developer, I have done a lot of development on SharePoint side, so it's would be very helpful. It's one of my यानी कि मैं कहूँ कि मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है डेवलपमेंट वाला कि किस क्या-क्या अब प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं एज अ डेवलपर. इफ यू आर हैव अ डेवलपर बैकग्राउंड, देन वो सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा. और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर मॉड्यूल्स हैं शेफर ऑनलाइन के एसपीएफएक्स और पीएनपी मॉड्यूल्स, वो किस तरीके से इंटीग्रेट करने हैं, किस तरीके से हम लोग वेब पार्ट्स कंपोनेंट्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं. वो हम लोग लास्ट सेशन जो होगा वो इस सीरीज का उसमें डिस्कस करेंगे. अच्छा, लास्ट वीक हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट 365 डेव टेनेंटिंग क्रिएट किया था.
और उसको जो है आई होप कि जो जिन लोगों ने लास्ट वीक अटेंड किया था उन्होंने क्रिएट कर लिया अपना डेव टेनेंट। आपने developer.microsoft.com पे जाके अपना डेव टेनेंट क्रिएट करना है अगर इफ यू डोंट हैव क्रिएटेड ऑलरेडी। वहाँ पे आपको जो है शेरपॉइंट एडमिन सेंटर में जाके शेरपॉइंट के एडमिन सॉरी माइक्रोसॉफ्ट 365 डेव टेनेंट एडमिन सेंटर में जाके आप शेयरपॉइंट एडमिन टेनेंट में जा सकते हैं। वहाँ से साइट्स क्रिएट कर सकते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें हैं वॉक थ्रू कर सकते हैं। और जो वीडियो जो है उसकी आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं एमएस टेकटॉक के, कि लास्ट वीक हम लोगों ने किससे ये क्या-क्या स्टेप्स परफॉर्म किए थे। तो आपको एक अच्छा वॉक थ्रू आपको मिल जाएगा उसके लिए। नाउ लेट्स जंप इनटू द टुडेस टॉपिक, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। अच्छा planning an effective information architecture is understanding your users and helping them to find what they need to complete the task in a way that makes the most sense to them. अब ये है कि जब भी आपने क्योंकि जब आप कुछ चीज क्रिएट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन यानी कि कर अगर उसका एडवांटेज नहीं, एक तो होता है कि नॉर्मल हमने साइट क्रिएट की जिस तरह एक आप ब्लॉग क्रिएट करें, आप उसमें कंटेंट किस तरीके से लिखना है ताकि आपके जो यूजर्स हैं बिजनेस यूजर्स और कंज्यूमर्स वो किस तरीके से उससे बेनिफिट ले सकते हैं, वो हमें यानी कि वो तमाम चीजें इसमें हमें कैटर करनी होती हैं और यूजर्स को देनी होती हैं। और किस तरीके से उनकी लेबलिंग करनी है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट के। एचआर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो हैं वो एचआर की साइट के अंदर जाएंगे, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस में जाएंगे और फिर उनको किस तरह से सिक्योर करना है। और अगर डॉक्यूमेंट्स को क्योंकि अब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ जो यानी कि इंफॉर्मेशन कंटेंट का रहता है वो सर्च आता है, वो तो वो किस तरीके से मैनेज करनी है, नेविगेशन किस तरीके से करनी है। तो देयर आर 6 मेन एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के। वन इज द ग्लोबल नेविगेशन, और यानी कि if you consider the top level of navigation across your SharePoint tenant and how you structure your sites so that user can find content including the home site of your intranet. Or second one is hub structure and organization. Okay, if you have hub sites, then you need to enable hub to your group together similar where you can have similar topics, tasks, and content. And another navigation type is local sites and page navigation structure, and which is available on team sites. And this will show that how you organize your content on each of the site or page that user can can navigate and consume easily. The fourth one is metadata structure. Metadata impacts search and browsing structure as well as compliance and retention policies. अब इसमें क्या रहता है कि आप लोगों ने अगर if you have seen a SharePoint site, you know that there are few columns which, बल्कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ आउटलुक की। आपकी ईमेल चेक करते हैं, ईमेल्स के अंदर आपने कुछ कॉलम्स देखे होंगे, एक आता है सेंडर, सब्जेक्ट, क्रिएटेड बाय, कि ये सॉरी सेंडर नेम, सेंड डेट, जो वो तमाम इन्फॉर्मेशन आती है वो है उस ईमेल का मेटा डेटा, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। तो सिमिलरली हम लोग शेयरपॉइंट के अंदर भी इस तरह मेटा डेटा क्रिएट करते हैं और उसकी डिफरेंट वेज हैं, और इसी की बेसिस पे आपकी रिटेंशन पॉलिसीज वगैरह वो भी अप्लाई हो जाती हैं। फिर अच्छा इसकी वजह से सर्च भी आसान होती है, फिल्ट्रेशन भी आसान होती है। अब आते हैं सर्च एक्सपीरियंस, हाउ द यूजर कंज्यूम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इन एडिशन टू ब्राउजिंग। कि एक तो नेविगेट करके किसी कंटेंट पे आप जाते हैं, सर्च करते हैं। आई विल अगेन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ योर ईमेल्स, कि आप ईमेल में एक तो होता है कि आप नेविगेट करते हैं ईमेल्स के ऊपर, अपने डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हुए होते हैं, वहाँ पे रेलेवेंट ईमेल्स कॉपी की होती हैं फोल्डर से वो रेलेवेंट। बट कई दफा आपको कंटेंट काफी पुराना होता है तो उसे सर्च करना है, वो किस तरीके से सर्च करना है, उस पर किस तरह के फिल्टर्स लगा सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं। फिर द फोर्थ वन इज पर्सनलाइज्ड कंटेंट एक्सपीरियंस, कि हाउ स्पेसिफिक कंटेंट इज टारगेटेड टू सर्टेन यूजर्स एंड ग्रुप ऑफ यूजर्स, कि आपने एक स्पेसिफिक यानी कि जो जिससे एक डिपार्टमेंट या टीम रिलेटेड कंटेंट है वो किस तरीके से मैनेज करना है। और आपने ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन यूजर से लेनी है, बिजनेस यूजर से लेनी है। इसमें कई काफी सारे कई रोल इन्वॉल्व हैं। वो कौन कौन से हैं कि they are different, I would use the word actors who are involved in organization, यानी कि for information architecture। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये अगर आप ये पिक्चर देखें जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसके अंदर 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस।
अब ग्लोबल के अंदर रोल्स कौन-कौन से आ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट ओनर, डिपार्टमेंटल बिज़नेस ओनर, आईटी एडमिन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट ओनर कौन है? द इ जो है इसके अंदर डिसीजन मेकर्स आपके वो आ जाते हैं, जो कि कंपनी वाइड होते हैं। अब अगर मैं इसको द शेयरपॉइंट में ये माइक्रोसॉफ्ट इस प्लेटफ़ॉर्म के पर्सपेक्टिव में आपको लेके जाऊँ, तो जो आपके ग्लोबल एडमिन हैं, टेनेंट के ऊपर, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। दे विल अलाउ कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन शो करनी है। देन आपके बिज़नेस ओनर्स आ जाते हैं। बिज़नेस ओनर्स क्या हैं? जिनका बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ एचआर डिपार्टमेंट की साइड बना रहे हैं या फाइनेंस बना रहे हैं, तो फाइनेंस हेड, एचआर हेड उनका होना ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो अब ये हैं वो बिज़नेस यूज़र्स जिनसे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। फिर आईटी एडमिन्स, दे विल अलाउ कि क्या जो है प्लानिंग स्टेज के अंदर कि क्या-क्या यानी परमिशंस वो दे सकते हैं, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है कि गेस्ट यूज़र्स को अलाउ करना है और यू डोंट वांट टू अलाउ, तो वो तमाम चीज़ें जो है आपकी प्लानिंग स्टेज के अंदर डिस्कस होंगी। इन इन लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। अच्छा, देन कम्स हब साइट्स। व्हाट आर हब साइट्स? अ, आपका हब साइट से मैं सिर्फ़ ये सिंपल सा ये बताता हूँ कि दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइट कलेक्शंस। अब वो साइट कलेक्शन सेपरेट यानी कि साइट्स, ये सेपरेट साइट्स समझ लें उनको। ईच वन इज़ अ सेपरेट साइट। अब उनको एक कंटेनर, एक साइट कलेक्शन टाइप है जो कि व्हिच वी कॉल एज़ हब साइट कलेक्शन। वो उन सब के एज़ अ मास्टर जो है ना वो आते हैं, जिसमें टॉप नेविगेशन, थीम वगैरह अप्लाई हो रहता है, और रेलेवेंट कंटेंट जितना भी है उस साइट से, हब से रिलेटेड, वो हम लोग उसके अंदर टैग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो एचआर का है, एचआर डिपार्टमेंट है मल्टीपल साइट कलेक्शंस, बट हम लोगों ने एक हब क्रिएट कर दिया एचआर का, और उसके अंदर तमाम की तमाम जो है एचआर से रिलेटेड साइट दे दी। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंटरनेट साइट होती है और एक हब होती है, तो दीज आर बिट डिफरेंट। अच्छा, फिर लोकल है। लोकल आदत है की साइट, जिस तरह वी हैव अ टीम ऑफ 5 पीपल, हमारी एक सेपरेट साइट है। अच्छा, उसके लिए भी साइट ओनर्स होते हैं, जिनको एंगेज करना पड़ता है प्लानिंग स्टेज के अंदर कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्या स्ट्रक्चर आपको साइट का रिक्वायर्ड है, और वो तमाम चीज़ें इसका पार्ट होगी। फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता है, जिसके अंदर आपने चीज़ें इंटीग्रेट करना शुरू करी, और उसके अंदर देखें, अगर आप लोकल में जाएँ, क्योंकि जो कंटेंट वो ऐड करना है वो लोकल जो है साइट्स के ऊपर ही होगा, क्योंकि हर साइट का कोई ना कोई ओनर होगा और उसके अंदर जो है कंटेंट ऑथर्स होंगे। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी के जो साइट ओनर है वही कंटेंट इनके ऑथर भी हैं, और दैट कुड बी डिफरेंट रोल। अच्छा, फिर मेंटेनेंस, ये तमाम लोग ही मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होंगे। यानी जो आप ग्लोबल लेवल पे हैं, जो टॉप लेयर है, वो आपकी जो है अप्रूवल दे रही होगी चीजों का, या चीजें हाईलाइट कर रही होगी। अच्छा, लास्ट लाइन देखें, वो इसका पार्ट नहीं है, बस सेपरेट है। कंटेंट कंज्यूमर्स, यानी कि एंड यूजर। अब अच्छा, ये देखने में तो इसने इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन ये यानी क्या जो इस स्ट्रक्चर के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि कंटेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, द साइट्स व्हिच यू आर क्रिएटिंग इज फॉर द एंड कंज्यूमर्स, एंड यूजर्स, तो इनको भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। यानी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो भी वो कंज्यूमर से आपको यानी कि फीडबैक लेते हैं, और कंटिन्यूस फीडबैक ये चलता रहता है कि व्हाट दे वांट टू सी, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दे आर लुकिंग फॉर, कि क्या सर्च करना है, क्या फील्ड रिक्वायर्ड है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन, ताकि कंटेंट इजीली एक्सेसिबल हो जाए। अच्छा, अब नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। हमें ये चीजें क्यों रिक्वायर्ड है? हम क्यों शेयरपॉइंट यूज करें? हम किस लिए करें? इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर का क्या एडवांटेज है? अब आपके पास ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दे ऑलरेडी हैव सो मच कंटेंट। हाउ टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग कंटेंट? आपने किस तरह से उसको वैल्यूएबल करना है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बिजनेस प्रोसेस जो ऑटोमेशन कहलाती है। वी वर्क फॉर ए ग्रुप इन दुबई। उनका एक बिजनेस प्रोसेस था पासपोर्ट क्लियरेंस का, व्हिच कुड टेक अराउंड 45 डेज। वो मैनुअल प्रोसेस था कि एक के पास जाएगा, वहां से यानी कुछ फॉर्म अप्रूव करवाना है, फिर दूसरे के पास जाएगा, उसमें फिर चेक्स काफी सारे लगे हुए हैं, तो काफी लंबा प्रोसेस था। और इसमें ये नहीं पता चलता कि डिले कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी थी। तो हम लोगों ने जब उनकी ऑटोमेशन की, तो उनके प्रोसेस को समझा पहले, प्रोसेस को री-इंजीनियर किया, और शेयरपॉइंट पे जब उस प्रोसेस को यानी कि ऑटोमेट किया हम लोगों ने, सो द सेम प्रोसेस जो कि 45 दिन में कंप्लीट हो रहा था मिनिमम, अब वो कंप्लीट हो रहा था ये 4 से 5 दिन के अंदर। और उसमें अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि अगर कोई बंदा जो है डिले आ रहा है तो क्यों आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक कंटेंट को साइन करना है, लेकिन मैं छुट्टी पे चला गया हूँ,
तो ये टास्क किसी और को डेलीगेट हो जाएगी मेरी जगह। अदरवाइज़ क्या होता था कि जब तक मैं आऊँगा नहीं तो वो चीज़ आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो ये इस सिस्टम में वो तमाम की तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर वो चीज़ स्टक हो गई है और डेलीगेट नहीं किया किसी को, तो वो चीज़ एस्केलेट हो जाएगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें कि इस तरीके से हम लोग बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिज़नेस यानी कि इस इन्फॉर्मेशन से जो है बिज़नेस यानी गेन कर सकता है। अब आते हैं द सेकंड पे यानी कि ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर की क्या-क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है कस्टमर्स के साथ। फर्स्ट थिंग इज़ द लेवल ऑफ नेविगेशन कि नेविगेट किस तरह, क्योंकि ये शेपर्ड है कि बेसिकली कंटेंट होल्डर है आपका। इसको ईसीएम भी कहते हैं कि इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका कंटेंट टेक्सचुअल कंटेंट भी है, पेजेस भी हैं, इवेंट डिटेल्स भी है, न्यूज़ भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं और वीडियो कंटेंट भी है, ऑडियो कंटेंट भी है, तमाम के तमाम कंटेंट अवेलेबल है। आप उस कंटेंट को तो आपने डंप कर लिया एक जगह पे या एक कंटिन्यूस आ रहा है, जिस तरह आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की चैट्स हैं, ये तमाम चीजें जो है इंफॉर्मेशन जितनी भी हैं वो तो आपकी, इवन जो ईमेल्स जो चल रही होती हैं, ईमेल्स को भी लोग यानी एज अटैचमेंट जो है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में सेव करते हैं एज ए रिकॉर्ड, क्योंकि अब कई जगहों पे तो बकायदा ईमेल जो है एक एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है किसी भी उसके लिए, एविडेंट के लिए कि बड़ी बड़ी डील से लिए, तो वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा करना, फिर उनको आर्काइव करना कि कितने अरसे तक वो यानी कि जो है वो एक्टिव रहेगा, उसके बाद उसको आर्काइव कर देना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं शेयरमेंट के अंदर मैनेज होती हैं। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? डेटा तो आ रहा है। अब आपको नेविगेशन करनी है कि डेटा के जो है उस डेटा को रीच आउट करने के लिए, और मॉडर्न शेयरपॉइंट के अंदर इन 3 लेवल ऑफ नेविगेशन अवेलेबल है। वन इज़ कॉल्ड ग्लोबल नेविगेशन, the other global navigation for the entire site collection of sites that uh, comprise of your intranet, और सेकंड है हब नेविगेशन फॉर द ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड साइट्स, जो मैंने आपको ये प्रीवियस बताया था कि आपके अगर एचआर के से रिलेटेड जितनी साइट्स हैं वो हमने हब एचआर के हब में वो ऐड कर दी। आई विल आल्सो शो यू फॉर मोर क्लैरिटी यानी कि लेटर ऑन द सेशन। एंड थर्ड वन इज द लोकल नेविगेशन फॉर द इंडिविजुअल साइट, एक स्पेसिफिक सबसाइट के लिए और साइट कलेक्शन के लिए। अच्छा, हब के अंदर भी जो या हब इटसेल्फ एक साइट कलेक्शन है, और इसके अंदर जो बाकी जो एसोसिएटेड साइट्स हैं वो भी सारी की सारी साइट कलेक्शंस होंगी। अच्छा, ग्लोबल नेविगेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज ए डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट गोज इन द ग्लोबल नेविगेशन। आप लोगों ने देखोगे कि मैं इन शेयरपॉइंट की भी बात नहीं करता। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे जाएं, आपको एक स्टैटिक यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ यानी कि लेबल्स नजर आ रहे होंगे नेविगेशन के अंदर। होम, अबाउट अस, न्यूज़, कंपनी न्यूज़, वर्किंग हियर, ये जो आपके ये अभी कुछ मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, ये डिफरेंट भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वेरी भी होता है, बट ये एक आइडियल जो है नेविगेशन अक्सर आपको साइट्स के ऊपर इस तरह की नजर आ रही होंगी। अच्छा, इटसेल्फ ये जो तमाम नेविगेशन आ रही हैं, हो सकता है कि जैसे मैं न्यूज़ पे क्लिक करूँ तो ये न्यूज़ ही हब साइट पे लेके चल जाए, तो हब नेविगेशन वहाँ पर आ जाए, ठीक है? तो ये एक्सटेंड भी आगे हो सकता है, ये टॉप लेवल नेविगेशन है, ग्लोबल नेविगेशन है, कंपनी इंटरनेट पे, उससे फिर आपकी जो फर्दर जो है वो एक्सटेंड डिफरेंट साइट्स के ऊपर जा रहे हैं। अब हब नेविगेशन, अब इसके अंदर आप ये डायग्राम देखें, इसके अंदर नज़र आ रहा है कि हब, एचआर टीम साइट प्राइवेट, बेनिफिट्स प्राइवेट। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट थोड़ा-सा मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि हो सकता है कि एचआर की साइड है, ठीक है? इसके अंदर कुछ कंटेंट प्राइवेट है, कुछ पब्लिक है। पब्लिक से मुराद में जो कि एम्प्लॉइज़ के लिए है, कुछ इंटरनल कंटेंट भी है। तो हियर देखें, यहाँ पे देखें बेनिफिट्स प्राइवेट भी हो सकते हैं, बेनिफिट्स कि एचआर ने अपने इंटरनल वो रखे हों कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, और कुछ एचआर ने पब्लिक भी किए हों, यानी कि यूजर्स के लिए हों। और जिस तरह मैनेजर पोर्टल इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्टेड है कि एचआर के अंदर भी यानी कि हो सकता है सिर्फ टॉप मैनेजर्स को जो है वो कंटेंट का एक्सेस हो उसके ऊपर, तो वो किस तरह से मैनेज करना है। और लेकिन अच्छा, ये तमाम चीजें जब होंगी तो ये तो शेयरपॉइंट सिक्योरिटी से मैनेज हो सकता है, बट अब चैलेंज का आता है कि उसको नेविगेट किस तरह करना है। तो नेविगेशन के लिए, इजी नेविगेशन के लिए हम लोग हब साइट्स के ऊपर जाते हैं। अब पहले एक कॉन्सेप्ट ऑफ सबसाइट्स का वो मैक्सअप उसको यानी कि अब मॉडर्न ये स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि वो नहीं कर रहे, हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो वही यानी कि हब साइट्स, और हर एक यानी कि चीज की सेपरेट साइट कलेक्शन होगी, विच कैन बी कैटर्ड अंडर जो है हब साइट।
अच्छा, वेबसाइट का थीम वगैरह तमाम चीज़ें आप ये डिफाइन कर सकते हैं। और ये वेबसाइट किसी भी यानी कि स्पेसिफिक टाइप की हो सकती है, कि प्रोजेक्ट्स के लिए है, डिपार्टमेंट के लिए है, डिवीजन के लिए है। और बेसिकली ये इट हेल्प्स टू रिलेटेड साइट्स बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एंड रीजन। और नेविगेशन जो है इसकी, अगर आप ये नीचे वाले जो स्क्रीन देखें, तो नेविगेशन जो है, आप वो हाइलाइटेड पार्ट देख रहे होंगे कि किस तरीके से इसकी नेविगेशन जो है नजर आएगी तमाम की तमाम साइट्स के ऊपर। और जो नीचे वाली साइड नेविगेशन अक्षर के बाद नजर आ रही है, वो उसकी अपनी नेविगेशन है, उस लोकल साइट की। अच्छा, नाउ लोकल नेविगेशन। अच्छा, लोकल नेविगेशन इज द स्टैटिक नेविगेशन दैट व्यूअर्स कैन सी ऑन एवरी पेज ऑफ योर साइट। अब एक साइट के अंदर आते हैं, उस पर लेफ्ट पे नेविगेशन नजर आ रही है फॉर साइट कंटेंट, कि जहाँ पे आप मुख्तलिफ कंटेंट पे जाना चाह रहे हैं। और सेकंड वन ये कि आप, जो मैंने अभी प्रीवियस स्क्रीन में बताया था, कि आपको एक टॉप लेवल नेविगेशन नजर आ रही है एक साइट की, जो कि वो तमाम के तमाम पेजेस उस साइट की तरफ जाएंगे तो वहां पर नजर आएगी। अच्छा, मैं साइट से थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, फिर उसके बाद मैं एक दफे जंप इन करूंगा ताकि फिर आपको वो चीजें एक्सप्लेन वहां कर सकूं। अच्छा, साइट्स दो तरह की होती हैं शेयरपॉइंट के अंदर। यानी कि जो वी आइदर कॉल देम इंटरनेट पोर्टल, इंटरनेट साइट्स और पोर्टल्स। इनके बेसिकली कंटेंट सेव करना है, और इनके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है क्या नाम है, कंपनी, अगर डिपार्टमेंट वाइज भी होता है और कंपनी वाइज भी होता है, कि इसमें कंपनी न्यूज और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट्स, जिस एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, डिफरेंट यानी कंपोनेंट्स के इंफॉर्मेशन जो कि उसके अंदर शेयर कर रहे होते हैं। और इनकी दो बेसिक स्पेसिफिक टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड टीम साइट्स, वो एक डिपार्टमेंट्स के लिए या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेस्ड ये टीम्स के लिए है। सेकंड वन इज कम्युनिकेशन साइट्स। वो कम्युनिकेशन साइट्स बिल्कुल ये नॉर्मल वेबसाइट की तरह, जहाँ पे इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रही होती है। अच्छा, जो कम्युनिकेशन साइट्स है वो बिल्कुल सेपरेट होती हैं, लेकिन टीम साइट्स कैन बी पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट 365 जो ग्रुप्स हैं, दे प्रोवाइड ए मेंबर सर्विस दैट कैन इजीली बी allows to for the hub sites and setting up the permissions for a group of users instead of adding individual users to a site। और इसके अलावा इसके मल्टीपल इनकी जो है यूसेज है, कि आप इसको प्लानर, वन नोट, शेयरपॉइंट टीम साइट्स, और या आप जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ईमेल ही बनती है, जो कि एक ग्रुप ईमेल, जो आप अक्सर आपने देखा होगा, तो एज ए वो भी यूज हो रहता है। और इट कैन आल्सो हैव अ सेपरेट टीम, यानी कि इसकी इनके जो ग्रुप के साथ एक माइक्रोसॉफ्ट टीम भी एसोसिएट हो जाती है। और देयर सिनेरियोस की, यानी कि आपको ग्रुप चाहिए, उस यानी कि ग्रुप स्पेसिफिक, यू डू नॉट इन टीम, सो वो भी एन सेपरेट हो सकता है, कि एक माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप है और उससे एसोसिएटेड एक शेयरपॉइंट साइट है, बट देयर इज नो टीम फॉर दैट वन इज रिक्वायर्ड। ये सिनेरियो टू सिनेरियो इनकी चेंजेस आती हैं। अभी शायद आपको ये चीजें मे बी क्लियर ना हो कि व्हाट आई एम स्पीकिंग, बट जब इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो आपको ये चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। अच्छा, पेजेस पेजेस इज द एरिया वेयर यू विल हैव कंटेंट। अब इसको मैं जो है, यानी कि जो साइट्स जितनी भी हम बनाते हैं, कम्युनिकेशन साइट है या टीम साइट्स हैं, दे ऑल हैव पेजेस। और पेजेस में डायनामिक वेब पार्ट्स होते हैं, विच कुड फीड कंटेंट फ्रॉम द न्यूज़, हाइलाइटेड कंटेंट, सबसाइट्स, इमेजेस, डायलॉग्स, आपकी वीडियोस हैं वो इसमें शो करने, किसी तरह का भी कंटेंट शो करने के लिए हम पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। और इनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है शेयरपॉइंट के अंदर। वन इज़ होम पेज, जो कि आपको अगर इस स्क्रीन पे नज़र आई, जो आपको कंटेंट नज़र आ रही है, होम पेज है। ये वो एरिया है जहाँ पे हाइलाइटेड कंपोनेंट्स, चीज़ें, डिटेल्स आपकी अवेलेबल है। और आप इसके ऊपर नेविगेशन पे क्लिक करते हैं, ये नेविगेशन लिंक्स है, जो कि आपको नेविगेट करवाते हैं डिफरेंट पेजेस के ऊपर, कि मैं इस पेज की, जिस तरह अनाउंसमेंट्स के पेज के ऊपर वो चला गया। वहां से फिर मैं डेस्टिनेशन कंटेंट पे जाता हूँ, कि उस कंटेंट की स्पेसिफिक डिटेल, जिस तरह मैंने डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में किसी गया, वहां पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसकी जब डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो उस डॉक्यूमेंट की डिटेल पेज, ये डॉक्यूमेंट की डिटेल खुलेगी। तो डेस्टिनेशन पेजेस जो है वो कहलाते हैं। अच्छा, अब ये अभी हम लोगों ने साइट्स देख ली, साइट्स क्या होती हैं, पेजेस। और जो
तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये कि 2 इम्पोर्टेंट एरियाज़ हो रहे हैं। एक पेजेस एक मेटा डेटा आर्किटेक्चर जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कॉलम्स एंड कंटेंट्स आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटा डेटा एलिमेंट्स कंटेंट टाइप। शेयरपॉइंट में डिफरेंट कंटेंट टाइप्स है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की भी डिफरेंट कंटेंट टाइप्स होती हैं। ये फ़ोल्डर इटसेल्फ एक कंटेंट टाइप है, डॉक्यूमेंट है, एक लिस्ट आइटम कहलाते हैं, आपको थोड़ी मैं दिखाता भी हूँ। और इनकी डिफरेंशिएशन किस वजह से होती है कि टाइप कौन-सी है कंटेंट की, किस तरह का कंटेंट है, वीडियो है, ऑडियो है, सिंपल टेक्सचुअल कंटेंट है और उसमें कौन-कौन से कॉलम्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ टिकटिंग सिस्टम की, तो टिकटिंग सिस्टम में क्या-क्या कॉलम्स आ रहे होंगे? इश्यू, टिकट नंबर, इश्यू डेट, असाइन टू कि किसे असाइन हुआ है। ये इस तरह डिफरेंट फील्ड जो है और कमेंट्स और किसने अप्रूव किया है, रिजेक्शन हुआ है, स्टेटस क्या है उसका, पेंडिंग है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इसे उस स्पेसिफिक कंटेंट टाइप के कॉलम्स कहलाते हैं। अच्छ अच्छा और इसके अलावा दीज़ आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज़ द डेटा एंड पेजेस जो है ये कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के रिक्वायरमेंट ये यूज़ होते हैं। दे आर इनके आल्सो हेल्प्स यूजर्स फॉर फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग द कंटेंट कि अगर मुझे देखना है कि मुझे सिर्फ एचआर के डिपार्टमेंट के तमाम डॉक्यूमेंट देखने हैं या वो तमाम डॉक्यूमेंट देखने हैं जो कि अदनान ने अपलोड किए होंगे या किसी स्पेसिफिक यूजर ने किए हैं तो वो किस तरीके से फिल्टर आउट करना है, किस तरीके से कंटेंट को नेविगेट करना है, वो इसके थ्रू पॉसिबल है। आपको यानी कि मेटा डेटा आर्किटेक्चर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और ये भी हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यूजर्स जो है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डिफाइन करेंगे कि इन्फॉर्म ये रिक्वायरमेंट लेनी है ताकि एंड यूजर को पता चले। आप ये स्क्रीन के अंदर भी देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, इसमें डॉक्यूमेंट से नाम आ रहे हैं और डॉक्यूमेंट की जो है वो एफर्ट की एक कॉलम है। ये कोई कंटेंट टाइप एक बनाई हुई जिसमें एफर्ट का फील्ड है जो कि एक हाईलाइटेड दिखा रही है कि कितनी की इसमें एफर्ट होगी। ये नंबर ऑफ डेज पे या किसी भी कैलकुलेशन कैलकुलेटेड कॉलम की बेस पे जनरेट होता है। मॉडिफाइड बाय और ये प्रोजेक्ट टाइप क्या है? किस तरीके से देखें प्रोजेक्ट टाइप की अगर मुझे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की डेटा देखना है तो वो मैं फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा 2 चीज़ें हैं, नॉर्मली यू आर यूजिंग मैक और विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी आप अपना कंटेंट फाइल्स किस तरह मैनेज करते हैं? यू डू नॉट हैव दोज़ मेटा डेटा कॉलम्स आपके पास कॉलम्स नहीं है, ठीक है? आपके पास वो डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन कॉलम्स ही अवेलेबल है। जो कि आपको नज़र आते हैं या आप सेकंड काम क्या करते हैं, आप फ़ोल्डर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब इसमें एक इश्यू क्या आता है, फ़ोल्डर्स यानी कि एक यानी यूज़फुल वे ऑफ यानी कि मैनेजिंग कंटेंट है बहुत ज़्यादा। यानी कि आप इसकी ये जो स्क्रीनशॉट जो डॉक्यूमेंट्स का जो इस ये नेविगेशन लिंक आ रहा है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। ये सेकंड ये जो आ रहा है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है अब ये फ़ोल्डर्स हैं, फ़ोल्डर्स के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर्स भी हैं। अब आपको मैं सिनेरियो एक डिस्कस करता हूँ कि अगर एक फ़ोल्डर के अंदर यानी कि सेकंड लेयर ऑफ फ़ोल्डर है तो वो तो यानी कि बेअरेबल है, यानी कि ईज़ी है। बट अगर जो है फ़ोल्डर्स हैव सब फ़ोल्डर एंड देन सब फ़ोल्डर तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आपके पास प्रोग्राम फ़ाइल्स के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, अगर आपको उसकी एक्सिट तक नेविगेट करना है, उसकी फ़ाइल तक नेविगेट करना है, इट्स वेरी हार्ड टू आइडेंटिफ़ाई कि वो फ़ोल्डर कहाँ गया, ठीक है? अगर वो अच्छा उसके अंदर फिर आपको क्या करना पड़ता है कि अक्सर मेरे साथ होता है कि अक्सर मुझे इस सॉफ्टवेयर का नाम भी याद नहीं रहता। तो वो जो है वो ढूँढना मुश्किल हो जाता है सर्च के थ्रू भी। तो इसलिए मेटाडाटा टैग्स ही इम्पोर्टेंट है कि जिसकी वज़ह से हम लोग ये शेयरपॉइंट के अंदर भी आता है इश्यू कि फ़ोल्डर सर्च ही नहीं होते उस तरह से, क्योंकि उनकी टैगिंग उस तरह से नहीं होती। लेकिन जो है कंटेंट की होती है, तो वो किस तरीके से करनी है, तो इसलिए मेटाडाटा आर्किटेक्चर डिफाइन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिक्योरिटी जो है वो दोनों पे लग जाती है, फ़ोल्डर लेवल पे भी हो सकती है और कंटेंट ये मेटाडाटा उसके थ्रू भी लग जाती है और जितनी भी लेबलिंग वगैरह वो उस पे परफॉर्म ये हो जाती है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोग एक शेयरपॉइंट की साइट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंगल डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी होती है। जो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कभी बनाई होगी और उसके शेयरपॉइंट के अंदर गए होंगे, तो आपने देखा होगा एक डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी आ रही होती है। अच्छा, instead of using one default document library on your internet sites,
consider adding topic-specific libraries and add side columns to organize your content within the library to avoid creating multiple labels of nested folders. क्योंकि जब हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं बिजनेस यूजर से मुलाकात करते हैं तो उनमें ये तमाम चीजें डिस्कस होती हैं कि दीज आर डिफॉल्ट वन बट हम लोग टॉपिक स्पेसिफिक जो है ना जिसमें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट हम लोगों ने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में रखा उसमें जिसमें ये कॉलम्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे इस तरह से कॉलम्स क्रिएट कर लिए ठीक है तो इस तरीके से जो है क्या नाम है, आपके ये मेटा डेटा वन ऑफ द की एरिया है शेयरपॉइंट के अंदर कंटेंट सेव करने के लिए वही सर्च के अंदर भी जो मेटा डेटा फिल्टर्स हैं कॉलम्स हैं ये फिल्ट्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं अरे सर्च इज द की यानी कि जब आपका कंटेंट आ गया अगर आपको नेविगेशन नहीं कर पा रहे तो फिर भी आप कई दफा होता है कि आई एम कंफर्टेबल गोइंग डायरेक्टली टू द साइट इंस्टेड ऑफ यूजिंग सर्च बट अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट जो सर्च की अगर बात करूं तो मैं काफी एक्टिवली इसको यूज करता हूँ स्पेशली टीम्स के अंदर कि मुझे कोई स्पेसिफिक चैट्स करनी है डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो मुझे फिंगर टिप्स पे जो है ना वो मुझे चीज मिल जाती है बिल्कुल ऐसे ही शेयरपॉइंट के अंदर होता है व्हेन यू आर पार्ट ऑफ मल्टीपल टीम्स आपको कंटेंट नहीं मिल रहा होता तो आप ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कंटेंट अगर आपको याद हो तो उसकी बेसिस सर्च कर रहे हैं मेटा डेटा फिल्ट्रेशन की बात की बेसिस पे सर्च कर रहे हैं या फिर जो आप ये चेक कर सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए हैं जब इस यूजर ने अगर किया हो या स्पेसिफिक टैगिंग के थ्रू फिल्ट्रेशन ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप जो है वो उस कंटेंट को सर्च कर सकते हैं अब मैं जंप इन करता हूँ डेमो के ऊपर गिव मी अ सेकंड आई होप यू कैन सी द स्क्रीन नाउ अच्छा मैं अब आ गया हूँ नाउ आई एम ऑन माय माइक्रोसॉफ्ट 365 टेनेंट एडमिन सेंटर और इफ आई गो हियर टू शेयरपॉइंट एडमिन सेंटर अच्छा यहाँ मेरी तमाम की तमाम साइट्स वगैरह जो है यहाँ नजर आ रही होंगी आई एम हियर और यहाँ से मैं ये डिफरेंट साइट्स कलेक्शन जो साइट्स क्रिएट हैं वो यहाँ पे नजर आ रही हैं अच्छा मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा साइट्स को तो ये टीम साइट का एक टेम्पलेट आ रहा है और whenever I create a team site it will also create a Microsoft 365 group by default और ये कम्युनिकेशन साइट्स हैं ये कम्युनिकेशन साइट दोनों रिक्वायर टीम साइट बट दोनों में कंटेंट सेव होता है इसका पर्पस आता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल इंटरनेट साइट्स वगैरह उनके लिए और ये होती है टीम बेस्ड साइट्स के लिए अच्छा एक तीसरा ऑप्शन है कि अगर ओल्डर वर्जन ऑफ शेयर पॉइंट्स यूज करें जो पुराने उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं था तो उनके लिए आप तीसरे ऑप्शन पे भी जा सकते हैं अच्छा मेरे पास ऑलरेडी काफी सारी साइट्स क्रिएटेड हैं मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ इनमें कुछ शायद कोई हब साइट भी हो ये देखें कॉलम आ रहा है हब का मैं हब से जो है फ़िल्टर कर लेता हूँ। अच्छा ये दीज़ आर द कॉलम्स जो कि मैं बात कर रहा था किस तरीके से फ़िल्ट्रेशन आसान हो रही थी इनकी मदद से। मैं अच्छा ये साइट्स आई हैं तो लेट मी चेक कि मैंने काफ़ी अर्सा पहले ये क्रिएट की तो मुझे खुद याद नहीं है। अच्छा ये टॉप नेविगेशन आ गई साइट्स के ऊपर कि कौन-कौन सी साइट्स हैं, क्या है, कंटेंट है। अच्छा ये इस स्पेसिफिक साइट के लिए ये जो है जो वो है लोकल नेविगेशन भी, ठीक है? और ये जो है टॉप लेवल वो लिंक आ रहे हैं अगर यहाँ पे आपको ये जो है वो लिंक मज़ीद ऐड करने हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये आप ये पेज है, जो आपको नज़र आ रहा है कंटेंट जिसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे और ये डिफरेंट वेब पार्ट्स इसके अंदर ऐड किए मैं काफ़ी ईज़िली इसको मॉडिफाई किया मैंने एडिट किया और इसमें जो है कंटेंट को ऐड कर सकता हूँ। ये स्टैटिक कंटेंट है कुछ इसके अंदर और ये डायनामिक कंटेंट है, ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी से आ रहा है, ठीक है? सॉरी ये एक्टिविटी दिखा रहा है कि यूजर ने क्या एक्टिविटीज की है करंट यूजर ने तो ये उसकी तमाम एक्टिविटीज आ रही हैं करंट यूजर है जिससे लॉगिन में हुआ हूं। और ये इवेंट्स आ रहे हैं इसके तमाम ये एक लिस्ट है इवेंट्स की उससे यानी कि फेच होकर आ रही इन्फॉर्मेशन अब डेटा नहीं है तो इसलिए इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल यानी कि वो फिजिबल उस तरह की नहीं लगती ये डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट ठीक है मैंने चेंजेस कुछ की इसके अंदर लिंक सेट किए मैं इसमें लिंक ऐड करता हूँ
अच्छा, मैं लिंक ऐड किया, इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपने अगर आइकन चेंज करना है, ये तमाम चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है ऑन द फ्लाई आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे लिंक आ गया है। अच्छा, इसी तरह डॉक्यूमेंट्स का है, अब जो मैंने बात की थी कि ये एक पेज है, इसके थ्रू हम लोग नेविगेशन करके दूसरे पेज पे गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर नेविगेशन के लिए ज जाता हूँ, साइट कंटेंट के अंदर। अच्छा, ये कम्युनिकेशन साइट है, तो यहाँ पे देखें आपको लेफ्ट नेविगेशन नज़र नहीं आ रही। इसका स्टैटिक कंटेंट जो है वो यही है इस साइट के लिए। और यहाँ पे मैं इन डिफरेंट ये सेकंड लेयर ऑफ पेजेस पे आके जहाँ पे मुझे नेविगेशन लिंक्स आ रहे हैं डिफरेंट नज़र, और यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे ये डेस्टिनेशन पे ले जाएगा इस लिस्ट की। यहाँ से मैं इवेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इवेंट लिस्ट से यहाँ से इवेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के ऊपर। हम ये यहाँ से अपनी नई डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, साइट्स क्रिएट सबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज़ जो बात कर रहे थे। और इस डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर फ़ोल्डर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल यहाँ से भी कॉलम ऐड कर सकते हैं मज़ीद। ये डिफरेंट कॉलम टाइप्स है, जिस तरह आपने डॉक्यूमेंट लाइब जो इसके अंदर देखा होगा, जो है स डेटाबेसेस के अंदर के कॉलम्स वगैरह क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा, मैं देखूँ कि मेरे पास कोई एक्जिस्टिंग साइट हो जिसके अंदर कुछ कंटेंट हो, तो मैं उससे लेके जाता हूँ। मैं वापस आता हूँ शेयरपॉइंट एडमिन सेंटर में। ये इस साइट की डिटेल्स हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है? यू नीड टू एक्सप्लोर दिस, यानी कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ है। कुछ गलत होता है तो कोई इश्यू नहीं है, आप दोबारा साइट क्रिएट कर लें, ठीक है? उसमें कोई वो इश्यू नहीं है। अ, अच्छा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरपॉइंट के, कि वो इसी एक विंडो से तमाम के तमाम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि साइट्स कब क्रिएट हुई हैं, कौन-सी साइट्स हैं। और इसके अलावा देखिए लास्ट एक्टिविटी साइट पे कब की थी, ये चीज़ें डिटेल्स आ रही हैं। अब मैं अगर इसमें आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, अब इसमें कितनी फाइल्स व्यू हुई हैं। अगर कोई साइट यूज़ नहीं हो रही तो उसको डिलीशन करनी है, अगर जो भी यानी कि वो करना है वो यहाँ पे हम बैठ के कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कौन-सी साइट इनमें कंटेंट है, तो मेरे ख्याल में ये एक साइट है जिसके ऊपर कुछ कंटेंट मुझे नज़र नज़र आ रहा है। मैं इस पे जाता हूँ। अच्छा, ये भी एक कम्युनिकेशन साइट है, और मैं इसमें जाता हूँ साइट कंटेंट के ऊपर। अच्छा, जिस तरीके से मैं नेविगेट कर रहा हूँ, अभी आपके लिए थोड़ी-सी नेविगेशन मुश्किल होगी, लेकिन जब आप एक दफ़ा कर लेंगे तो आपके लिए नेविगेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक लिस्ट में कंटेंट है, इसके अंदर डेटा यानी कि भी किसी जो है ऐसे परमिशन वगैरह कुछ इश्यू है जिसकी वजह से मुझे शो नहीं हो रहा। अच्छा, ये देखें, ये कंटेंट इसके ऊपर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें पेजेस के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे ये लर्निंग पाथवे की साइड है, तो इसमें वहाँ पर यकीनन कुछ होगा। ये देखिए, तो फ़ोल्डर्स भी हैं, डिफरेंट जो है वो पेजेज़ हैं। मैं ये नेविगेशन एक साइट के ऊपर आया मैं, और इसके अंदर कंटेंट अभी लोड होगा शायद कुछ। इन्फॉर्मेशन जो है पेजेस को क्रिएट किया गया है, डिफरेंट है, और ये टॉप नेविगेशन देख लें इसकी, कि कॉलम्स क्रिएटेड हैं, ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन पे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। मज़ीद फर्दर डिटेल जितनी भी इससे रिलेटेड वो यहाँ पर आ गई। और ये स्टैटिक कंटेंट है, कुछ डेटा डायनामिक कंटेंट है इसके अंदर। इस तरीके से जो है आप अपनी साइट्स को, चीज़ों को बिल्ड अप कर सकते हैं, और कंटेंट को ये जो है क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सर्च। अभी देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कुछ आ गई। अब मैं कहता हूँ कि शेयर पॉइंट, या कीवर्ड लिख के मैं सर्च किया। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स सर्च अवेलेबल है। इसके अंदर मैं कंटेंट को सर्च कर रहा हूँ, हर तरह का कंटेंट सर्च होकर आ रहा है। फाइल टाइप्स आ रही है, मैं माउस ओवर करूँगा तो ये इसकी डिटेल जो है मुझे शो कर देगा। अच्छा, ये कंटेंट कुछ इस तरह का, इसकी प्रीव्यू नहीं है। मैं जाता हूँ फाइल्स के ऊपर। तो कुछ इसमें ऐसा डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं जिनके प्रीव्यू जो है ना फौरन जनरेट हो जाए।
लेकिन फ़ोल्डर्स हैं, इमेजेस इसमें आ जाएँगे, साइट्स हैं, न्यूज़ हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे जो है शो रहेगी। अब इसमें प्रीव्यू मेरे पास किसी वजह की कंटेंट की टाइप की वजह से जो है ना प्रीव्यू जनरेट नहीं हो रहा, वरना डॉक्यूमेंट्स अगर हो, एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है, वो यहीं प्रीव्यू के अंदर मैं वो व्यू कर सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई वीडियोज़ हैं तो वो भी जो है इसके अंदर वो जो है प्ले हो जाती हैं, इसी विंडो से। और ये ऐप लिंक्स हैं, ये स्टैंडर्ड हैं शेयरपॉइंट ऑनलाइन के अंदर, यानी कि ये मूव नहीं होंगे। बाकी आप मोस्ट ऑफ द कस्टमाइजेशन जो है इसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट्स भी हैं कुछ कि आपने मॉडर्न उसको यानी कि फॉलो ही करना है टेम्पलेट्स को, उसी को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये डिवाइस फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिव है, ताकि आप किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये उसी लिहाज से जो है आउटपुट उसका मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, मैं वापस आता हूँ, मैं इसके अंदर किसी और साइट को भी मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, ये है जो शेयरपॉइंट पेज, इस पे जितनी भी यानी कि मेरी साइट जो मैं विज़िट करता हूँ, वो तमाम की तमाम यहाँ पर जो है लिस्ट डाउन हो जाएँगी। जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, वो भी आ जाएँगी, और जो मैं रिसेंटली नेविगेट की हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएँगी। तो ये एक ईज़ी वे है कि उन साइट्स के ऊपर भी जाने का। 1 सेकंड। अच्छा, ये है डिफ़ॉल्ट कंपनी इंटरनेट साइट, इसके अंदर जाके देखते हैं इसमें कंटेंट क्या आता है। मैं देखता हूँ, इसमें कुछ कंटेंट है ऐसा। इसमें फ़ोल्डर्स के अंदर शायद कुछ है। चाहिए उधर मुझे ले गया। अभी देखिए डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, इसमें फ़ोल्डर्स है, मेटा डेटा फ़ील्ड्स वगैरह जो चीज़ें हैं, तमाम की तमाम जो है ना, इसमें लेबल्स अप्लाई किए थे, जो एक डेमो के लिए। तो इसका इनका ये एडवांटेज क्या था कि ये मैं इसी मशीन पे एक्सेस कर सकता हूँ, इनको डाउनलोड करके चेक नहीं कर सकता, यानी कि किसी गेस्ट अकाउंट से मैं एक्सेस नहीं कर सकता ये कंटेंट। तो सिक्योरिटी वगैरह ये चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इम्प्लीमेंट की गई थी। ठीक। अच्छा, ये थोड़ा-सा ओवरव्यू था शेयरपॉइंट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर कि आपने किस तरीके से साइट क्रिएट करनी है। डिफरेंट टाइप्स हैं, आप जो है अगर आपने किसी भी साइट को, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इस साइट को मैं किसी भी रैंडमली एक साइट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसमें जो है मुझे हब साइट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा मिस कर रहा हूँ चीज़ों को। क अच्छा, ये मैंने से इसको क्लिक किया, और इसको एज़ अ हब साइट जो है ना इसके साथ एसोसिएट कर दिया। ये ड्रॉप डाउन में मेरे पास आ रही होंगी हब साइट जितनी भी हैं इसके ऊपर, एक ही है, तो वो उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे इसको यानी कि एज़ अ हब साइट क्रिएट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इससे हब साइट क्रिएट करता हूँ लर्निंग पाथवेज़ को, तो मुझे क्या करना होगा, इसको रजिस्टर एज़ हब साइट। अब मैंने कर दिया इसको, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हब साइट आगे लिखा हुआ, ठीक है? अब मैंने इसको जैसे सिलेक्ट किया इस वाली फ़ाइल को, अब इसमें मैंने आके एसोसिएट एज़ हब कर दिया, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लर्निंग पाथवे भी आ रहा होगा, और दूसरी भी आ रही होगी। अच्छा, इसको अभी हमने नेविगेट किया था क्विकली, अभी टाइम है थोड़ा-सा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका इंटरफ़ेस है। अब मैंने इसको एसोसिएट कर देता हूँ हब के साथ। अब मैं इसको चेक करता हूँ। अब इसमें ऊपर ये हब साइट का पाथ आ रहा है, और जो हब साइट की कुछ भी नेविगेशन होगी वो टॉप पे हम इसकी ऐड कर सकते हैं। ये हब साइट के ऊपर आ गया। उसी तमाम नेविगेशन जो है वो जो है हम उस तरीके से मॉडिफ़ाई कर सकते हो, और नेविगेशन मॉडिफ़ाई करना इतना आसान है। इस पे क्लिक किया, एडिट किया, और ये तमाम नेविगेशन लिंक्स आ गए, आप नेविगेशन अपनी फर्दर इसमें ऐड करते रहें। ठीक, मैं वापस
अच्छा, अगर आपको कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क नाउ। ये आज की डिटेल्स थी। और डू जॉइन अस फॉर नेक्स्ट वीक सेशंस। और आप इवेंट ट्राइब के ऊपर आप जो है रजिस्टर कर लें। और जो है वहां से आपको मैं जो है नेक्स्ट वीक जो लिंक होगा वो भी शेयर हो जाएगा ओवर द ईमेल विद यू गाइस।